ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਫਿਸ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਲਫਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਲਫਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਸੋ ਉਲਫਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? कनाडा के लिए सर पॉजिटिव ही है सब कुछ, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हैं, इन टाइम सब कुछ है। क्यूबेक के लिए थोड़े से स्टूडेंट ज़रूर नेगेटिव हैं, लेकिन रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। CAQs इन टाइम आ रहे हैं, ऑफर लेटर्स इन टाइम आ रहे हैं, फिर एक्सेप्टेंस, CAQs, रिजल्ट्स सब कुछ इन टाइम है। सो कनाडा के लिए हम कह सकते हैं दैट कनाडा अभी चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो PR है, इन्वेस्टर, सबके लिए बहुत पॉजिटिव है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी, बिकॉज वी आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स नाउ जी। ਸੋ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਬਤਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਜੁੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਓ। ਮੈਮ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ 10 ਕਾਲਜ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, CAQ ਜਾਂ पासवर्ड रिक्वेस्ट PPR नहीं आ रही हैं, उन्होंने लेके की कहना है? सर, हमने हमेशा देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा इंक्लाइंड है क्यूबेक की तरफ, एंड उसके बैड रीजंस भी नहीं है, रीजंस भी अच्छे हैं, क्योंकि क्यूबेक में प्राइवेट कॉलेजेस को भी PSW है, इजी PR भी है, और भी बहुत से रीजंस है कि स्टूडेंट्स जो है वो इंक्लाइंड है क्यूबेक मॉन्ट्रियल की तरफ, एंड उन्हें कंसल्टेंट एंड एजेंट्स के थ्रू गाइड भी किया जाता है। बट द थिंग इज़ कि जो CAQ सस्पेंशन हुए थे वो अंडर सर्वे थे, अंडर उनकी जो भी सर्वे किया गया, एग्जैक्टली। बट एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ, क्योंकि रिजल्ट्स इन टाइम आ रहे हैं, एंड जो भी ऑडिट हुआ है उसके बाद जो कॉलेजेस हैं उनको अथॉरिटीज़ वापस दी गई हैं, एंड CAQs भी टाइमली इशू हो रहे हैं। सो स्टूडेंट शुड नॉट बी नेगेटिव अबाउट क्यूबेक मॉन्ट्रियल। अगर प्रोफाइल एलिजिबल है वहीं जाना है, रीजंस हैं वहाँ जाने के, सो डेफिनेटली स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर है जी। हेलो, टीवी की आवाज़ हौली कर लियो जी प्लीज़। हेलो, मेरे ख्याल पिछों TV की आवाज़ ही आई जा रही है तो अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश हो रही है, जिहदे थोड़ी जी कन्फ्यूजन पैदा होंदी है। मैं फिर बेनती कर दिना, तुसी सानू सुन पा रहे हो अपने TV सैट ते, अपने जिहड़े कोई भी LED ते देख रहे हो या लैपटॉप से देख रहे हो, वो 10-15 सैकेंड का फर्क रहिंदा। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣ ਪਾਓਗੇ TV ਤੇ ਜੋ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਲਫਤ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੋਰ बहुत सारे कॉलेजेस ने जिन्हों की ऑप्शन हैगी है, तो उन्होंने रिजल्ट्स को लेके कोई भी दिक्कत नहीं है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड सर, इनफैक्ट जो लिस्ट में भी, सस्पेंशन लिस्ट में भी कॉलेजेस थे, वो भी सारी चीज़ें क्लियर करके अब वापस वहीं से रिजल्ट्स भी इन टाइम आ रहे हैं। अगर CDI, हर्जिंग, ये सब जो भी कॉलेजेस सस्पेंडेड थे पहले CAQ को, क्योंकि जो सर्वे किया गया था कुछ रूल्स की वजह से, बट अब सब कुछ इन्हीं कॉलेजेस की वजह से इन टाइम एंड इवन टाइम से पहले भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो आई गेस देयर इज़ नो डाउट इन स्टूडेंट, अब नहीं रहना चाहिए कि वेदर हम अप्लाई करें क्यूबेक मॉन्ट्रियल में कि नहीं, क्योंकि इन टाइम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं जी। कॉलर ने जी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सर, की पूछना चाਹੁੰਦੇ टीवी में तो लाइव प्रोग्राम आ रहा है? बिल्कुल लाइव ही ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी, हाँ जी।
जी सर, की पूछना चाਹੁंदे हो? सर ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੂੰ ਬੇਟਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗੁੱਡ, ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਐਕਸਪਾਇਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਨਾ ਹੂੰ ਉਹ ਤੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। जी मैम, थोड़ा सा समझा दियो जी कि क्यों एक्सपायरी लिखता है पीआर कार्ड? सर आपका जो पीआर का वैलिडिटी है वो है 11 मार्च 2026 तक। उसके बाद एक्सटेंड करना है, आपकी क्या आगे प्रोसीजर रहेगा, रूल्स अगर सिमिलर रहते हैं तो एक्सटेंड होगा। अगर आप कहीं से मूव करते हैं, एक प्रोविंस की पीआर मिली है, फेडरल मिली है, सो एक्सपायरी का मतलब ये है कि आपका जो पीआर कार्ड है वो वैलिड है अंटिल 2026। उसके बाद वो एक्सटेंड हो सकता है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ अप टू द प्रोफाइल। एंड उस टाइम के रूल्स या जो भी अपडेशंस होगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर बेयर करेगा ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ 10 ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਊਬੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਲਫਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਜਟ ਘੱਟ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਫੀਸ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? सर वी डील इन दोज कॉलेजेस, ऐसे कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जिनकी फीसेस में $6500 से स्टार्ट होती है। ज़्यादा ऑप्शंस कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, ऑप्शन सभी स्टूडेंट्स के लिए, वेदर इट इज़ आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। पर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए वी आर ऑफरिंग डिग्री इन अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे पूरी डिग्री की जो फ़ीस है वो बस $12000 है। एंड वी आर गेटिंग प्रोडक्ट्स एंड वी आर गेटिंग दोज ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स को चाहिए। फ़ीस आफ्टर वीज़ा है, कम फीसेस वाले कॉलेजेस हैं, चाहे वो 2 में 5.5 के लिए ऑप्शंस हैं। सो ये यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज इज़ ऐसे ही नहीं है कि शायद क्यूबेक मॉन्ट्रियल में ही है, वैंकूवर जैसी सिटीज़ में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैंकूवर जैसी सिटीज़ में भी ऑप्शंस हैं। सो क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंगली, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर एलिजिबल है प्रोफाइल, सो बहुत अच्छी ऑप्शंस अब फ्यूचर विंग्स के थ्रू स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर है जी। हेलो हेलो सर। सत श्री अकाल जी। हाँ जी सर, मैं चैनल बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लाइव हो रही है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰ। हाँ जी सर, सर इसमें मॉन्ट्रियल बारे पूछना थी सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछो जी। हाँ जी सर, मेरी मॉन्ट्रियल कनेडा कॉलेज की बच्चे की फाइल लगी हुई है, मेरे बेटे की सिलेक्शन की हुई है मैंने। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ? कनेडा कॉलेज की मॉन्ट्रियल। अच्छा जी। 22 अक्टूबर की लगी है सर। तो 12 में मेरी कटी हुई है ना बायोमेट्रिक, हाले कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा सर। कदों को निपटू लेंदा मेरा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਉਹੀ 10 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਹਲੇ ਕੁਝ। बिल्कुल सर, जो प्रीवियस रिजल्ट स्टक हैं, जो अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हुए, जो भी बैकलॉग्स हैं, हाई कमीशन की तरफ से ये आ चुका है कि टिल 31 मार्च जितने भी बैकलॉग्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। सो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, होपफुली विद इन फ्यू डेज रिजल्ट्स आ जाएंगे, बिकॉज हाई कमीशन की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि टिल 31 मार्च सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। ਜੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਐਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈਏ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बिल्कुल सर, अगर हम पिछले सारे सिनेरियो का देखें, स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नेगेटिव हुए हैं, इवन जो फ्रेश प्रोफाइल्स भी हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स को भी अप्लाई करना है वो भी थोड़े बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट कभी भी सफ़र नहीं किया है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, स्टूडेंट को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से ही जो है रिज़ल्ट मिलता है। अगर प्रोफाइल अच्छी है तो वीज़ा आएगा, अच्छे से प्रेजेंट की है तो वीज़ा आएगा, नहीं अदरवाइज रिफ्यूज़ल आएगा। सो इट इज़ ओनली अबाउट प्रेजेंटेशन एंड प्रोफाइल। ये ऑडिट्स की वजह से, सर्वेज़ की वजह से आई डोंट थिंक स्टूडेंट को कभी भी सफ़र होता है। सो स्टूडेंट शुड नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर हम वैसे लॉजिकली भी देखें तो प्रीवियसली जितनी प्रोफाइल्स हैं उनके रिजल्ट्स प्रोफाइल के हिसाब से आए हैं, एंड जो रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए वो टिल 31 क्लियर हो जाएंगे। एंड जो अभी न्यू प्रोफाइल्स हैं उनके लिए भी प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम कर दिया गया है हाई कमीशन की तरफ से। तो दिस इम्प्लाइज दैट हाई कमीशन एंड कैनेडियन एम्बेसी इज़ वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हेलो हाँ जी सत श्रीकाल जी सर मैं पूछना सीगा कि कनेडा बारे पूछना सीगा जी ਜੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। हाँ जी सर मैं पूछना सीगा कि ना फाइल में खोई हुई है तो मतलब तक नहीं आया। ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर असं ना फाइल लगाई हुई है कनेडा के लिए ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਲੋਰਿਸ ਕਾਲਜ ਚ। लॉरेस्ट कॉलेज, ठीक है ना मैम? वही सर, जो भी बैकलॉग्स है टिल 31st तक वेट कर लिया जाए। अदरवाइज़ अगर नहीं आता तो आप अपनी डिटेल्स जहाँ से भी आपने अप्लाई किया है, यूर कंसल्टेंट एजेंट, एक बारी डिटेल ज़रूर चेक कीजिएगा कि डिटेल सही गई हैं कि नहीं, ईमेल, आपका फ़ोन नंबर एंड सारी डिटेल्स आपकी जो भी हैं। बट अभी आई वुड रिकमेंड यू टू वेट अंटिल 31st मार्च, क्योंकि बैकलॉग्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं आता तो मे बी डिटेल्स में दिक्कत है, एंड डेफिनेटली एक बारी आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जी सो फिर दोबारा वही सवाल आ जाता है जी भी हले 31 मार्च तक वेट करनी चाहिए है। जी सर। नेक्स्ट कॉल चलते हैं। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी जी जी, की सवाल है? सर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ओके, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸਰ। पीआर ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਲੋਰੀਡਾ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਕਲੈਂਡ। ਓਕੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋ? ਸਰ ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਈ। ਇੰਡੀਆ और मैं पाया सीगा जी, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਵੀਕ ਹੋ गए। बिल्कुल, की कहना जी उल्फत जी? पीआर के लिए आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। सो आप अपनी प्रोफाइल एक बारी डिस्कस कर लीजिए। एज क्या है आपकी? मैम सर एज कितनी है जी? हाँ जी भाजी उम्र कितनी है जी? थोड़ी उम्र कितनी है? 30 साल। 30। क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशन की है भाजी? क्वालिफिकेशन सर क्वालिफिकेशन में बीबीए की है एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस कितना है जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? सर एक्सपीरियंस मेरे को है 4 साल। सर आइल्स किया हुआ है आपने? ਭਾਜੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? आइलेट तो किया भाई। ਓਕੇ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੇ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਬੈਕ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਵੈਦਰ ਯੂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਔਰ ਨਾਟ, ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ठीक है जी जी मैम, यही बेटर रहेगा आई थिंक। एग्जैक्टली सर, बिकॉज एक्सप्रेस एंट्री या फिर पीएनपी के लिए, क्योंकि स्किल्ड वर्कर जो कैटेगरी है ये एक्सप्रेस एंट्री या पीएनपी के थ्रू जाती है, और एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ इस समय थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू क्रैक दैट स्कोर जो 700s में है अभी। बट एज अच्छी है, एज के यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम पॉइंट्स। क्वालिफिकेशन में बैचलर्स है, एंड आइल्स का अगर आप 7.5 तक ले आओगे तो एलिजिबिलिटी के साथ साथ और भी आपका जो CRS स्कोर है वो भी अच्छा बन जाएगा। सो आई गेस PR के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी, बट राइट नाउ बस PNP के लिए। अगर ड्रॉ नीचे जाता है तो मे बी आफ्टर सम टाइम एक्सप्रेस एंट्री के लिए भी, बट यू विल चूज़ अ प्रोविंस। आपकी ऑक्यूपेशन जिसमें आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वी विल फाइंड आउट कि कौन से प्रोविंस में आपकी ऑक्यूपेशन की डिमांड है, एंड वहाँ पे हम फाइल लगा सकते हैं। आई थिंक जिवें उन्होंने ऑकलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦਾ जी, ਸੀਗਾ। मे बी उसी में इनको सारा एक्सपीरियंस हो। सो वी हैव प्रोविंसेस इन कनाडा जहाँ पे ये जो ऑक्यूपेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ड्राइविंग है, ये डिमांड में रहती है सर। सो वी विल बी फाइंड आउट कि क्या स्कोर मीट करेंगे ये वहाँ पे, एंड देन ही विल बी पुटिंग फाइल ओवर देयर। सो बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ 78059
992000 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਸਰ। ਯੂਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ कदों चलनी है? कुछ अपडेट है मैम ऑस्ट्रेलियन? सर अभी हाई कमीशन की तरफ से देयर इज़ नो अपडेशन, सो वी कैन नॉट कमिट एनीथिंग until and unless कुछ ऊपर से नोटिस नहीं आता, बट जैसे ही कुछ भी आता है वी विल बी शेयरिंग ऑन आवर फेसबुक पेज, वेबसाइट ऑल्सो, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट। कोई भी अपडेट हो किसी भी कंट्री के बारे में, ट्रैवलिंग को लेके, स्टडी वीज़ा को लेके, पीआर से रिलेटेड जो भी ड्रॉज निकलते हैं वो वेबसाइट एंड हमारे फेसबुक पेज पे साथ के साथ अपडेट कर दिया जाता है। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दैट एंड यू कैन हैव अपडेशन वेन एवर जब भी ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल खुलेगा जी। नेक्स्ट कॉल है जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी। ਹੈਲੋ, सत श्री अकाल। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਹੋਟਲ ਕੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਭਾਜੀ? ਹੈਲੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਰੇਂਜ करा देंगे? सर यहाँ से अगर आप प्री करके जाएंगे सो आई गेस इट विल बी बेटर, क्योंकि हो सकता है एयरपोर्ट पे आपसे सब कुछ पूछा जाए, सो यू कैन हायर अ कंसल्टेंट एजेंट और एल्स यू कैन डू योर बुकिंग योर सेल्फ ओनली, बट आई वुड रिकमेंड कि पहले से अगर सब कुछ होगा सो इट वुड बी ईजी फॉर यू, और अगर एयरपोर्ट पे कुछ भी पूछताछ होती है तो भी आप आंसरेबल रहें उस चीज़ के लिए जी। सो बिल्कुल जी, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ 7805920000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BSc IT ਚ। BSc IT ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? और करंट ईयर की है जी, मतलब 2020 की है। हाँ हाँ जी अभी जी। फिर फर्दर वैसे MBA मतलब एडमिशन लेता है MBA वैसे। अच्छा जी। ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह ना की प्रोफाइल लग सकती है कि मतलब अपने दावा से कनाडा आइल्स की है जी? लग सकती है या आइल्स का हमने ये नहीं की सर जी। प्लान भी लास्ट सेमेस्टर करना MBA ਦੇ ਥਰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ मैं बिल्कुल जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? BSc IT की हुई है, रिसेंटली पास आउट है, सो इट मीन्स कि एक्सपीरियंस नहीं है, सो विदाउट एक्सपीरियंस PR के लिए वी कैन नॉट अप्लाई, चाहे 1 साल का हो, लेकिन 1 साल में भी इतने पॉइंट्स नहीं बनते कि एलिजिबिलिटी स्कोर बन जाए या फिर CRS इतना हो कि आप ड्रॉ को मैच कर सकें। सो स्टडी स्टूडेंट वीज़ा इज़ द ऑप्शन, जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट 6 ईच रहेगी या फिर 6.5 विद 5.5 इन 1 मॉड्यूल रहेगी, और अगर विदाउट आइल्स करना है दैन USA इज़ द ऑप्शन, अमेरिका अप्लाई कर सकते हैं, बट कनाडा के लिए आइल्स करना इंपॉर्टेंट है। आप 6 ईच ले आइए या फिर 6.5 विद 5.5 इन 1 मॉड्यूल जी। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। शो का समा नहीं अलाउ कर गया, उर्फा जी को खास मैसेज देना चाहो? बिल्कुल सर, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, अगर वहाँ पे कनाडा में कोई भी दिक्कत आती है आपको कोर्स चेंज करने में, कोर्स में प्रॉब्लम है, कॉलेज में लोकेशन में प्रॉब्लम है, सो वी हैव ऑफिस इन देयर इन कनाडा। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है कोर्स में आ जाती है, फर्दर PR से रिलेटेड, वर्क परमिट से रिलेटेड, क्योंकि बहुत से कॉलेजेस अभी स्टूडेंट को ऐसे दिए गए जहाँ पे PSW ही नहीं था, 1-1 साल का कोर्स था। सो अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, आवर टीम इज़ रेडी टू हेल्प देम ओवर देयर। आप वहीं पे जाके अपॉइंटमेंट लेके हमारी टीम को मिल सकते हैं। सो डू कॉन्टैक्ट अस आफ्टर द शो। जो भी क्वेरीज़ हैं, चाहे वो वहाँ पे हैं चाहे यहाँ पे हैं, वी विल बी लविंग टू हेल्प यू।
ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਅ Thank ਦੇ you ਵਿੱਚ so ਆਉਣ much, ਲਈ। 8:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਨੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।